In this period, fifth, we study Maths 1 of Standard 9 and topic is set. In this topic, now we have to study subset of a set. Subset of a set. Before to study this, let us discuss this problem. This example. In this example, some sets are given. Set A, set B, set C and set D and set I. These 5 sets are given. Set A start from infinity and there are infinite elements, and here is also -4, -2, 0, 2, 4, 6 and towards right there are infinite elements. And these elements are multiple of 2. In set B, there are elements 1, 2, 3, that means 4, 5, 6, infinity. In set C, starting from infinity to -12, -6, 0, 6, 12, 18, and towards right there are infinite elements. And these elements are multiple of 6. In set D, starting from infinite elements, and there are elements are -8, -4, 0, 4, 8, and towards right there are infinite elements, and these elements are multiple of 4. And in set I, starting from infinite elements, there are -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and infinite elements. Means in set I, these are integers. Then you observe, in this set I, there are infinite numbers. Means here is -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12. So many numbers, negative. As well as here is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So many elements. Then you observe that this -4 is present in I. This -2 present in I. 0 present in I. 2 present in I. 4 present in I. 6 present in I. These elements are not seen here, but these elements are present. If all these elements of set A are present in set I. Similarly, 1, 2, 3, 4, 5, 6, these elements of set B also present in set I. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And elements from set C, that is -12, -6, 0, 6, 12, 18. If we see, here is not seen, but all these elements, -12, -6, here, 0, 6, 12, 18, towards right, all the elements of set C also present in I. And elements of set D, that is -8, -4, 0, 4, 8, dash. All these elements are present in set I. Next, you see that all the elements of set A present in set I, all the elements of set B present in set I, all the elements of set C present in I, all the elements of set D present in I. Then we have to discuss subset. Suppose two sets, set A and set B. If all the elements of set B are present in set A, then the set B is called subset of set A. Likewise, we can say that A is a subset of I, B is a subset of I, C is a subset of I, and D is a subset of I, because all the elements of set A, B, C and D are present in set I. Then it is clear what is subset.
if A and B are two given sets and every element of set B is also an element of set A, then B is a सबसेट ऑफ सेट ए। मतलब यदि दो सेट है, सेट ए और सेट बी, यदि सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है तो सेट बी को सेट ए का सबसेट कहते हैं। उसे लिखते हो, पढ़ते कैसे? बी इज अ सबसेट ऑफ ए, या तो शॉर्ट में लिखते हैं बी सबसेट ऑफ सेट ए, सिंबॉलिकली रिटर्न एज B is a subset of A। इस तरह लिखते हैं B is a subset of set A, मतलब B के सभी एलिमेंट सेट A में प्रेजेंट है। और पढ़ते कैसे हैं? B is a subset of set A और B सबसेट A। देख, आपको सबसेट के संबंध में कुछ बातें जानकारी मालूम रहना जरूरी है। जैसे सेट A है, सेट ए के सभी एलिमेंट उसी सेट में होते हैं, तो अपन नहीं बोल सकते सेट ए इज इटसेल्फ सबसेट ऑफ ए। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। जैसे एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक जो सेट है स्वयं का ही सबसेट होता है। उसे लिखते कैसे हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ ए। उसी तरह एम्प्टी सेट जो होता है उसमें कोई भी घटक नहीं होते, तो वह एम्प्टी सेट हर किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है। तो ध्यान देखिए, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। और लिखते कैसे हैं? एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। दूसरी बात, जैसे मान के चलो ए के सभी घटक मान के चलो बी में है और बी के सभी घटक ए में है, यानी क्या हो जाएगा? ए के जितने भी घटक है वो बी में होंगे और बी के जितने भी घटक वो ए में होंगे। मतलब ये बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। ये कब पॉसिबल है? जब सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल सेट हो तब। इसी को समझना है। इफ ए इक्वल टू बी मीन्स सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल सेट है, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ यदि दो सेट इक्वल है तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। दूसरी बात, उसको रिवर्स में पढ़ेंगे अपन। यदि दो सेट है, सेट ए और सेट बी, यदि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तब क्या होगा? सेट ए एंड सेट बी विल बी इक्वल। यदि आपको प्रॉब्लम में कोई दो सेट इक्वल है बताना है तो अपन बता सकते हैं वह दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट है। तो लिखा है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इक्वल टू बी। तो समझ में आई? तो इस प्रॉब्लम में आपसे डिस्कस, इस प्रॉब्लम के आधार पर अपने सबसेट को समझे। अब इस प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम्स दिए अपने को डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है? डिस्कस एंड डिसाइड which of the following statement are true। यानी जो दो स्टेटमेंट दिए है इस सेट के आधार पे अपने को कौन से स्टेटमेंट ट्रू है ये अपने को बताना है। पहला लिखा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी सी एंड डी। मतलब क्या होना चाहिए? ए के सभी एलिमेंट्स बी में होना चाहिए, ए के सभी एलिमेंट सी में होना चाहिए, ए के सभी एलिमेंट डी में होना चाहिए, तभी ट्रू होगा। तो देखते हैं, देखो यहाँ पे जो -4 है बी में नहीं आएगा। मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए नॉट प्रेजेंट सेट बी, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट ए इज अ सबसेट ऑफ बी इज नॉट ट्रू। ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी इज नॉट ट्रू। सेकेंड, -4 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। देखिए -4 यहाँ पे नहीं है, मतलब ए के सभी घटक सी में नहीं है, इसलिए सेट ए सेट सी का सबसेट नहीं है। इसलिए जो स्टेटमेंट है ए इज अ सबसेट ऑफ सी इज नॉट ट्रू। सेकेंड, अब देखिए यहाँ पे -4 है, यहाँ पे या -2 है, यहाँ पे नहीं है। मतलब सेट ए के कुछ घटक जैसे -2 है
बी में -2 नहीं है, मतलब ए के सभी घटक सेट बी में नहीं है, इसलिए जो स्टेटमेंट है था ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी इज नॉट ट्रू। तो लिख सकते हो आप इसे, हर एक स्टेटमेंट को पहले लिखेंगे आप, ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी इज नॉट ट्रू। सेकंड लिखोगे ए इज अ सबसेट ऑफ सेट सी इज नॉट ट्रू। फिर लिखोगे ए इज अ सबसेट ऑफ सेट डी इज नॉट ट्रू। सेकंड एग्जांपल दिया है, बी इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट विच आर गिवन बिलो, गिवन अबव। सॉरी, देखो तो ये जो बी है सेट बी, ऊपर दिए गए जितनी भी सेट है उसका सबसेट है क्या, देखते हैं अपन। जैसे यहाँ पे 1 है 2 है, क्या 2 तो है लेकिन 1 नहीं है, मतलब बी के सभी एलिमेंट्स ए में नहीं है, तो बोलेंगे अपन बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट ए। सेकेंड देखो आप, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नहीं है, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, यहाँ पे तो यहाँ का एक भी घटक यहाँ पे नहीं है। हो सकते कुछ घटक होंगे, तो अपन ही बोलेंगे हाँ 6 है, 12 रहेगा, तो यहाँ के सभी एलिमेंट जो है बी के सभी एलिमेंट सी में नहीं है, इसलिए कहेंगे अपन बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट सी। अब चलते डी की तरफ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नहीं है, 2 नहीं है, मतलब बी के सभी घटक डी में नहीं है, इसलिए बोलेंगे बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी, बी है डी का सबसेट नहीं है। आगे ये जो एलिमेंट है 1 यहाँ पे है, 2 है, 3 है, आगे के सभी एलिमेंट्स है यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर प्रेजेंट सेट आई, देयरफॉर बी इज अ सबसेट ऑफ सेट आई। आप सभी चीजों को सिंबॉलिकली लिखोगे और उसको स्टेटमेंट भी लिखोगे, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। अब ध्यान दो बेटा, इसी को एक एग्जांपल पढ़ते हैं, इस एग्जांपल में से, जैसे यहाँ पे एक 3 सेट लिए ए बी और सी मान के चले, यहाँ पे जो -4 है, यहाँ पे -4 आएगा, -2 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 भी आएगा। मीन्स क्या हो रहा है, ए के सभी घटक सभी एलिमेंट आई में, मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ आई, ए इज अ सबसेट ऑफ आई। दूसरी बात, दूसरा सेट देखते हैं बी। देखो बी में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी एलिमेंट्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी है, मीन्स बी भी क्या है, आई का सबसेट है। उसके बाद में ये जो सेट सी है, -12 है, इधर कहीं ना कहीं -12 रहेगा सेट आई में, -6 कहीं ना कहीं इधर रहेगा, 0 है, 6 इधर होगा, 12 इधर होगा, 18 इधर होगा, तो क्या दिखता है अपने को, सेट सी के सभी एलिमेंट आई में है। और तो यहां पे अपन देखते हैं ए के सभी घटक आई में है, बी के सभी घटक आई में है, सी के सभी घटक आई में, मतलब ये इज अ सबसेट ऑफ आई, बी इज अ सबसेट ऑफ आई, सी इज अ सबसेट ऑफ आई। देन in reference to set A, B and C, all the elements of set A, B and C are present in set I. Then with reference to set A, B, C, we consider this set I as a universal set. तो अपन यहाँ पे जनरली क्या होता है, जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको अपन जनरली आई से डिनोट करते हैं। तो अपन क्या देख रहे हैं, सेट ए के सभी घटक आई में है, बी के सभी घटक आई में है, सी के सभी घटक आई में है। सॉरी, ये जो ए है आई का सबसेट है, बी आई का सबसेट है, सी भी आई का सबसेट है। तो ये तीन मान के चलते, अभी ये तीनों सेट के रेफरेंस में अपन आई को यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट की जो डेफिनेशन है कैसे लिखे अपने, यूनिवर्सल सेट, सपोज सेट ए बी एंड सी बी नॉन एम्प्टी सेट, जरूरी नहीं तीन ही सेट होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। And there is another set U such that A is a subset of U, A U का सबसेट है, B is a subset of U and C is a subset of U, A is a subset of U, B is a subset of U and C is a subset of U. Then set U is called universal set
तब इस सेट यू को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जनरली डिनोटेड बाय यू। तो बेटा फिर से ध्यान दो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन की तरफ। सपोज सेट ए बी एंड सी बी non-empty set, and there is another set U such that set A is a subset of U, set B is a subset of U, and set C is a subset of U, then set U is called universal set. Universal set is generally denoted by letter U. Study about complement of a set. To understand complement, here we take example, and with this help of example we understand the concept of complement of a set. What is given here in this example? Take a set of natural number from 1 to 20. Set of natural number from 1 to 20 as an universal set. Therefore, we can write U equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. These are the numbers from 1 to 20. We take this set as a universal set. Then here is the set Y. Sorry, set X. Set X equal to X. X is such that X is a natural number and if X is greater than 7 but less than 8. Therefore, here X such that X is a natural number and X is greater than 7 but less than 15. Therefore, this set X will be greater than 7. That will be 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14, less than 15. This is set X. Now, this is universal set and this is set X. For this set X, we have to find complement of set X. The complement of set X is the set of all such elements which are present in U but not in X. तो X का यदि कॉम्प्लीमेंट निकालने बोले, X का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ऐसे एलिमेंट्स जो U में है लेकिन X में नहीं है, उसे बोलते अपन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. जैसे यदि X का कॉम्प्लीमेंट निकालने बोले, इसे लिखते कैसे है? X कॉम्प्लीमेंट या तो XC, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट X. कौन से एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे? जो U में है लेकिन X में नहीं है. अब देखो U में कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन जो X यहाँ पे है ये नहीं होना चाहिए. क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इट आ गया. 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है. फिर इधर 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो ये हो गया X का कॉम्प्लीमेंट. तो देखो जैसे कोई यूनिवर्सल सेट है और उसका एक सेट है A, तो A का यदि कॉम्प्लीमेंट बोले तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ऐसे घटक जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन A में नहीं है, उस सेट को बोलते हैं दिए गए सेट का कॉम्प्लीमेंट. जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट बोले तो ऐसे घटक जो यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है. ठीक है, तो कौन से घटक आएंगे? जैसे यहाँ पे 1 है,
1 2 है, 2 3 है, 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 यहाँ पे है, इसलिए उसे नहीं लेना है। तो ये जो है 8 9 10 11 12 13 14 ये घटक नहीं आएंगे। फिर क्या आएगा 15 16 17 18 19 20। ये हो गया x का कॉम्प्लीमेंट। तो अपन जनरलाइज शब्दों में इसे पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सपोज U is an universal set and if A is a subset of U, A is a subset of U, then set of all elements in U which are not present in set A is called the complement of a set. It is denoted by A dash or A to power C. क्या लिखा है, माना कि U यह यूनिवर्सल सेट है और सेट ये सेट U का सबसेट है। तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ऐसे घटकों का समुच्चय जो U में है लेकिन A में नहीं है। तो देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, सपोज U इज एन यूनिवर्सल सेट, माना कि U क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। इफ A इज अ सबसेट ऑफ U, और ये क्या है, U का सबसेट है, then the set of all elements in U, U में होने वाले सभी घटक which are not present in set A, जो सेट A में नहीं है, is called the complement of A। तो इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। इट इज डिनोटेड बाय A dash or A to power C। तो फिर से सीधे सिंपल समझो, जैसे कोई यूनिवर्सल सेट है और कोई सेट ये है जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो A का कॉम्प्लीमेंट बोले तो कौन से घटक आएंगे, जो U में है लेकिन A में नहीं है। ऐसा जो समुच्चय होगा वो हो जाएगा A का कॉम्प्लीमेंट। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक सेट है X, उसका एक कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या हो रहा है, जो घटक X में है वो X कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, जो घटक X में है वो X कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, जो घटक X कॉम्प्लीमेंट में वो X में नहीं है। दूसरी बात देखो, यहाँ के सभी घटक U में है, यहाँ के सभी घटक U में, मतलब जो X है U का सबसेट है, X डैश मतलब X का कॉम्प्लीमेंट ये भी U का सबसेट है। तो देखो नो एलिमेंट्स आर इन कॉमन इन A एंड A डैश, मतलब जो सेट है और उसका जो कॉम्प्लीमेंट उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। जैसे ये दो सेट देखे अपन ने, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ नहीं है, 2 है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 15 16 17 18 19 20 कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ पे नहीं है। तो जो सेट होता है उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें कोई भी घटक कॉमन नहीं होता। दूसरी बात, A इज अ सबसेट ऑफ U एंड A डैश इज अ सबसेट ऑफ U। जैसे याद है कि अपने X U का सबसेट है और X डैश भी U का सबसेट है। सेकंड प्रॉपर्टी, देन जो यूनिवर्सल सेट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट, देखो कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसा सेट, ऐसे घटक जो U में है लेकिन A में नहीं है अपने बोले थे। तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में क्या होगा, सॉरी यूनिवर्सल के बारे में क्या होगा, यदि उसका कॉम्प्लीमेंट लिए तो यूनिवर्सल का सेट के कोई भी घटक नहीं आएंगे, तो क्या बचेगा वहां पे, जीरो, नन, जीरो नहीं, कुछ भी नहीं। तो यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है नल सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज अ नल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल सेट इज अ यूनिवर्सल सेट। ध्यान रखोगे, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा नल सेट और नल सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट। यही है प्रॉपर्टी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट U that is universal set is empty set, that is complement of U equal to 5 and complement of empty set is U, that is complement of null set is the universal set। ठीक है, then on the basis of complement of subset and subset universal set we have to solve practice set 1.3। in practice set 1.3 first problem is
इफ सेट A equal to A, B, C, D, E. These are 5 elements A, B, C, D, E. And set B, there are 4 elements C, D, E, F. In set C, there are 2 elements B and D. And set D, there are 2 elements A and E. Then which of the following statements are true and false? तो ये जो नीचे जो स्टेटमेंट दी है कौन से ट्रू है और कौन सी फॉल्स है अपने को बताना है। अपन पढ़ चुके हैं सबसेट रिलेशन। देखो पहला स्टेटमेंट है सी इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब सी के सभी घटक बी में होना चाहिए। देखते सेट सी और ये बी, सी के सभी घटक बी में क्या, देखो यहाँ बी है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ डी है, यहाँ पे बी है क्या, नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट होगा सी इज अ सबसेट ऑफ बी, ये क्या होगा, false. क्यों false? Because all the elements of set C are not present in D. Second statement, A is a subset of D. ये D का सबसेट है। अब यहाँ तो नेचुरल दिख रहा है अपने को, यहाँ पे ज्यादा एलिमेंट्स यहाँ पे कम है, तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी देख लेते, यहाँ पे ये है, यहाँ पे है, B है, यहाँ पे क्या नहीं है, C है क्या नहीं है, ये क्या नहीं है, ये है। यानी यहाँ के सभी घटक सभी एलिमेंट D में नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। नहीं, सी इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब डी के सभी एलिमेंट बी में होना चाहिए। देखते हैं डी के सभी एलिमेंट बी में, देख है क्या, बी नहीं है, बी है लेकिन बी नहीं है, तो सी, सॉरी सर, थर्ड प्रॉब्लम, D इज अ सबसेट ऑफ B, D इज अ सबसेट ऑफ B, यानी D के सभी एलिमेंट B में होना चाहिए। है क्या, देखते ये है नहीं है, E है लेकिन A नहीं है, ये नहीं है, तो क्या बोलेंगे सर, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। D इज अ सबसेट ऑफ A, यानी D के सभी घटक A में होना चाहिए। है क्या, देखते हैं D के सभी घटक A में, ये है E है, तो क्या है ये, ट्रू, ये सही है। B इज अ सबसेट ऑफ A, मतलब B के सभी एलिमेंट A में होना चाहिए। देखते C है, D है, E है, F नहीं है, तो क्या बोलेंगे पर ये भी क्या है, फॉल्स। C इज अ सबसेट ऑफ A, यानी C के सभी एलिमेंट A में होना चाहिए। देखते C के सभी एलिमेंट में P है, D है, ये भी स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू। समझ में? तो ये पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा फॉल्स है, तीसरा फॉल्स है, चौथा ट्रू है, पांचवा फॉल्स है, छठवा ट्रू है। चलो सेकंड एग्जांपल, टेक अ सेट ऑफ natural number from 1 to 20 as a universal set. आंसर में देखते अपन, सॉरी आंसर यहाँ से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज एन यूनिवर्सल सेट, एज अ यूनिवर्सल सेट, ये हो जाएगा 1 से 20 एंड so set x and y using Venn diagram। अब सेट x और y को Venn diagram से बताना है। हो गया, तो सेट x है, x is a natural number and x is greater than 7 but less than 15, तो x हो गया 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। दूसरी बात y, सेट y क्या है, y is also natural number and y is a prime number from 1 to 20, y is prime number from 1 to 20, तो ये y आ जाएगा, y इक्वल टू प्राइम नंबर 1 से 20 के प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर है 2, दूसरा है 3,
4 नहीं है, फिर है 5, 6 नहीं है, 7, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, फिर है 11, 12 नहीं है, 13, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17, 18 नहीं, 19। तो ये है प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। देन वी हैव टू शो यूजिंग वेन डायग्राम। अपने को बनाना है वेन डायग्राम। अब देखो ये यूनिवर्सल सेट, ओके, यू सपोज यू एंड सेट एक्स, सपोज सेट एक्स। एक्स में क्या है? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। सेट वाई में क्या है? 2, 3, 5, 5, 7, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13, 17 एंड 19। अब बच्चे कौन से नंबर से है? 1 आया क्या? नहीं आया, तो ये 1। 2 आ गया, 3 आ गया, 4 नहीं आया, 5 आ गया, 6 नहीं आया, 7 आ गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आ गया, 14 आ गया, 15 नहीं आया, 16 नहीं आया, 17 आ गया, 18 नहीं आया, 19 आ गया, 20 नहीं आया। देखिए आप क्या देखोगे यहाँ पे, ये जो 13 नंबर है ये दोनों में, 13 नंबर क्या है? दोनों में, दोनों में मतलब अब इसे कैसे दिखाएंगे अपन? देखिए 30, यानी ये सेट एक्स में भी है और वाई में भी है, ये सेट एक्स में भी है और वाई में भी है। तो ये कंप्लीट यूनिवर्सल सेट जहां पे 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 यानी 20 जितने नंबर से पूरे हैं। सेट एक्स में 8 से लेकर 14 तक नंबर है। सेट वाई में प्राइम नंबर्स हैं और बचे हुए जो नंबर्स आए यहाँ पे यू में आ गए, मतलब ये पूरे में आ गए। लेकिन ये जो 13 नंबर्स है कैसा हो गया? वो एक्स में भी है और वाई में भी है। ये अभी अपने को आगे पढ़ने में काम में आएगा, जहां पढ़ेंगे अपन इंटरसेक्शन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट टाइम।